Great. Good afternoon, everyone. And I'm so happy to see few of my colleagues have joined as well. I know it's so busy for all of you and you could all take time for it. I'm really happy and really thrilled. And I welcome you all to the amazing world of pediatric dentistry. This is honestly not going to be a boring session. I won't give any lecture. This is just an interactive session in which I'll be talking about the oral health of kids and why is it important. So, firstly, all of you have gone to a dentist, or when you were kids, you've gone to a dentist. We all know how much terrified, petrified, and unwilling we were to go to the dentist. Secondly, let me tell you, this is a two-way scenario. Even whichever clinic I go to, the general dentist also tell me that it's a nightmare situation. Worst of their nightmare comes to true when actually a child comes to you because he's very scared, and even the dentist is scared treating a child. So our goal as a pediatric dentist to see the scenario here, like 1956, this is the first pediatric dental clinic which was set up in Copenhagen. And the situation here was that the child was very scared. But now the primary goal is being changing and we want the child to be as happy as seen in this picture. This is me treating my patient. So this is the goal, that we want the child to have a good and happy dental treatment rather than being scared of the dentist. So coming on to the concept of why milk teeth are important at the first place, many of the patients also come and tell me that why do we have to save the primary teeth? Eventually, we all know that they fall off. But the problem is that primary teeth come into the picture when the child is actually at the growing age. So what we want to do is we want to help the child in having a proper growth and nutrition. So definitely primary teeth help in chewing. They help in proper growth and development of child and providing proper nutrition to the child. Coming on to speech. Now, what happens is that because of the teeth, many words which we pronounce, it is because of that the tongue touch the palatal or the inner aspect of the teeth. So teeth actually help us in pronouncing many words. So actually, the primary teeth also will help in speech. Coming on to confidence of child. Now, so in today's scenario, in social media dominated world, every child wants to post photographs. Every child wants to look good. And every child is fond of, clicking pictures, posting it on Instagram, posting it on Facebook. So one of the primary aim of a pediatric dentist is to boost that confidence into the child. Now, what happens is that if a child doesn't have a good teeth, I have seen that in my own patients also, that the parents come and complain कि मेरा बच्चा तो बिल्कुल हंसता ही नहीं है, मेरा बच्चा बात नहीं करता, मेरा बच्चा photographs नहीं खिंचवाता. What could be the reason beyond it? One of the reasons why the child are very shy and they are very low confident is because they do not have that good smile. And in today's scenario, trust me, there are friends with them and they try to mock the child. So what happens is that because of all this, the child has this little less confidence of going out and talking to people. So as a pediatric dentist, we actually help them regain that perfect smile and boost that confidence into them so that they do not feel conscious or shy, specifically clicking photographs or talking to the people. So it is said that your look is incomplete if you are not smiling properly. So smiles, as they sound, they're very contagious. So basically, primary teeth or the milk teeth will also help you in giving a beautiful smile, and most likely it will help in passing on that smile to other people as well. So the most important function of primary teeth, we've talked about smiling, we've talked about looks, but coming on to the most important function of primary teeth, which is to guide the permanent teeth. Now, it is said that primary teeth are the most natural space maintainers. Now, what happens is that there is a general perception that because ये दूध के दांत हैं, ये तो गिर जाएंगे, इसके बदले new teeth आएंगे. But because of early loss of tooth, that space which has been given to us by the God, as we are gifted of having two dentitions in our life, what happens that this space is reduced. So the damage is already done. अगर initial time पे वो early space loss हो जाता है, तो future के अंदर the space is not there. And in order to overcompensate it, we have to extract your permanent tooth. You need to get reduction in your permanent tooth. So this is not a correct criteria. The initial is if we are able to save and maintain that space in the earliest of time, the problem will not increase in the future time.
So we have talked about why primary teeth is important. Now let me tell you something about how many primary teeth are there. As I mentioned earlier, primary teeth, we are being gifted by two sets of dentition. We have 20 primary teeth in our oral cavity when we are child. So the first teeth which erupts in the oral cavity is at the age of 6 months, which actually increases, and till the age you are 3 years old, all the primary teeth come into picture. And the first permanent teeth which comes at the age of 6 years, and it keeps on increasing till you are 12 years of age. And if you're lucky enough, you'll get wisdom teeth as well. And the wisdom teeth come at the age of 18 years. But in today's scenario, actually the wisdom teeth, we are not blessed enough to have wisdom teeth in every person's mouth. And most of the times we have to get them removed because of some kind of problem or the other. Ma'am, I would just request you if you can, like speak something, bit Hindi and English, so that our audience, and there are many kids those who have joined, so just bits. Perfect. Hello everyone. For all those who have joined a little we have after. few little kids, so those who are excited to know the brushing skills. Yeah. Okay, thank you. Okay. Hello, greetings everyone. All those who have joined just lately. My name is Dr. Tanya Batra, and I'm talking about oral health in kids. So, coming on to the most important thing, the reason why you people have come today, that is how to brush and why to brush, first of all. Now, why to brush, everybody knows. But sometimes what happens is, बहुत से patients मेरे पास ऐसे आते हैं, parents आते हैं जो बोलते हैं कि हमारा बच्चा ना हमारी बात ही नहीं सुनता है, they don't listen to me at all. The problem is the child is never going to listen to you. This is for the parents who are listening to me and my dear dental colleagues who have such kind of parents coming on to them, और उनकी भी यही complaint रहती है कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, ये brush नहीं करता. The reason is कि बच्चे वैसे भी parents की बात नहीं सुनते हैं. The child will not listen to you, but it will actually imitate you. They will try to mock you because they are miniature adults. So what happens? अगर आप 2 time brush करेंगे, तो definitely the child will see you, and they will also have into this habitual practice of brushing 2 times a day. So it's better to guide them by doing it yourself. This is what I tell to my patients' parents as well. कि अगर आप 2 टाइम करेंगे तो डेफिनेटली बच्चा भी 2 टाइम करेगा. उसके अंदर स्टार्टिंग से ये हैबिट आ जाएगी कि 2 टाइम तो हमें ब्रश करना ही करना है. ठीक है. So the most important question is कितना amount of toothpaste is essential. Well, if the child is less than 3 years of age, you do not need a much amount of toothpaste. Well, the recommended dose is that you take just the right amount of toothpaste onto the brush, which is चावल के दाने जितना हम लोगों को, अगर 3 years से नीचे है तो the recommended amount is चावल के दाने जितना. And if the child is 3 to 6 years of age, pea-size amount of toothpaste is required, which is मटर के दाने जितना. So there is a common misconception amongst the parents which say that जितना ज़्यादा टूथपेस्ट यूज करोगे उतना अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा हम अच्छे से ब्रश कर पाएंगे, which is not the case. ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा टूथपेस्ट तो ज़्यादा अच्छी ब्रशिंग. ब्रशिंग टेक्निक से ब्रशिंग अच्छी होती है, टूथपेस्ट से नहीं. सेकेंड क्वेश्चन कि कौन सा टूथपेस्ट बेटर होता है, हमें कौन सा वाला सबसे अच्छा है जिससे बिल्कुल ही कीड़े नहीं लगेंगे दांत के अंदर. ऐसा भी कुछ नहीं है. दिस इज ऑल अ मिथ. सारे टूथपेस्ट ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं. आई एम नॉट इंडोर्सिंग एनी ब्रांड, बट डेफिनेटली जितने भी हमारे मार्केट में किड्स वाले टूथपेस्ट आते हैं, आप उनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं. इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज अ फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट. मैं अभी बात करूंगी उसके बारे में कि फ्लोराइड करके एक एलिमेंट होता है जो हर टूथपेस्ट में प्रेजेंट होता है. डेफिनेटली अ फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट और करेक्ट अमाउंट में यूज करना इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू ब्रश ट्वाइस. सेकेंडली we have to use the correct amount of toothpaste, and we can use any toothpaste. Like बहुत से brands हैं, Colgate Kids है, Pepsodent Kids है, then we have Cheerio, then we have Kidodent. आप कोई भी यूज कर सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि एक बेटर है दूसरा बेटर है, सब एक जैसे हैं. सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सबसे ज्यादा पेरेंट्स को कंसर्न रहता है कि क्या हम उसको खुद से ब्रश करने दें. कैन वी अलाउ द चाइल्ड टू ब्रश देमसेल्फ? ऑनेस्टली टिल द चाइल्ड इज 6 years of age. या फिर आप कैसे पता करेंगे? अगर आपका बच्चा अपने शू लेसेस खुद बांध सकता है, या फिर दे कैन टाई देयर ओन शर्ट बटन, और दे कैन ईट द रोटी बाय देमसेल्फ. वो उतना बड़ा हो चुका है कि वो सुपरविजन में ब्रश कर सके. उससे पहले तक आपको डेफिनेटली खुद ब्रश कराना है. योर चाइल्ड इज नॉट केपेबल इनफ ऑफ ब्रशिंग देमसेल्फ. वो बोलेंगे जरूर कि मुझे खुद करना है, बिकॉज दे हैव दिस टेंडेंसी कि हर चीज इंडिपेंडेंट करूं मैं जल्दी जल्दी, बट ऐसा नहीं है.
यू हैव टू हैव दैट कर्टेसी कि आप खुद से बच्चे का ब्रश कराएं, वो चाहे आप, हाँ डेफिनेटली अगर वो बहुत जिद कर रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है प्रैक्टिस के लिए तुम करो, बट जैसे मम्मा करती है ना बिल्कुल वैसे वैसे इमिटेट करना, ठीक है, बट आपको ही कराना है। 6 years से पहले पहले बच्चा खुद से ब्रश करने का, ही इज नॉट दैट केपेबल इनफ, ही डज नॉट हैव दैट मोटर स्किल्स कि वो कर पाए खुद से अच्छे से ब्रश। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, इफ अगर इन सब का अभी आपको समझ में आया तो जस्ट अ क्विक रिविजन, कितना टाइम ब्रश करना है, 2 times a day, कितने मिनट तक करना है, 2 minutes, एंड वी हैव टू यूज अ pea size amount of toothpaste if the child is more than 3 years of age. Okay, so coming on to brushing technique, brush कैसे करना है, so if I think if this is visible, yeah, it is visible. perfect. So this is just a copy of your dentition, ये समझ लो जैसे आप ही का टूथ हमने बाहर निकाल के रख दिया है। So how do you brush, अगर बच्चा बहुत छोटा है आप मिरर के आगे खड़े हो जाएं और बच्चे के साथ बड़े बड़े सर्कल्स बनाइए इस तरीके से, ठीक है, एंड देन कीप ऑन रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द सर्कल टिल द टाइम इट कम्स टू द माउथ। सो अगर चाइल्ड छोटा है यू कैन मूव इन अ सर्कुलर मोशन, वी कॉल इट द सर्कुलर टेक्निक और द पोन्स मेथड। सो सर्कुलर मोशन में आपने ब्रश करना है, यू हैव टू टेक 2 to 3 teeth at a time and then move it in an elliptical और a circular way, ऐसे सर्कल में 2 से 3 दांत एक बारी में, ठीक है, देन कम टू आगे वाले दांत, देन पीछे वाले दांत, एंड इट्स नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट कि आप बाहर से ब्रश करें, या अंदर के सर्फेस से भी ब्रश करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज क्या होता है कि बाहर की तरफ तो सर्फेस साफ हो जाता है, अंदर की तरफ नहीं होता, अंदर फिर कैविटीज बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नीचे वाले ब्रश को भी ऐसे ही करना है, अंदर से भी ब्रश करना होता है। हमारा मिसकंसेप्शन क्या कहता है ना, बाहर से फटाफट ब्रश कर लिया, एक ही साइड से कर लिया, बात खत्म, ऐसे नहीं करना, ठीक है। 2 times एंड प्रॉपर ब्रशिंग बहुत जरूरी है, अगर आप ऐसा करेंगे तो मोस्ट ऑफ द डेंटल प्रॉब्लम्स विल नेवर बी देयर, आई गारंटी यू दैट, ठीक है। सेकेंडली, बच्चों का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है कि वो लोग ना मिस फ्रीक्वेंट स्नैकिंग बहुत करते हैं, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि ये जब देखो चिप्स टॉफी चॉकलेट सब खाता रहता है। तो प्रॉब्लम ये है कि आप अगर उसे देना चाहें, लाइक इफ यू वांट टू गिव देम एनी स्नैक, इफ यू वांट टू गिव देम एनी स्वीट, प्लीज गिव देम अलोंग विद फूड। ऐसा मत करिए कि बीच में जैसे खाने के लाइक लंच और डिनर के बीच में आप उन्हें फ्रीक्वेंट स्नैक्स दे रहे हैं, ऐसा मत करो। लंच के साथ उन्हें कुछ मीठा दे दो, बिकॉज अगर वो बीच बीच में खाते रहेंगे ना तो हमारा जो ओरल कैविटी है उसमें बैक्टीरिया को प्रॉपर एनवायरमेंट मिल जाएगा कि वो डीके कॉज कर सके। दिस शुड नॉट बी देयर। रादर आप अगर उसी टाइम जिस टाइम वो खाना खा रहा है उसको थोड़ा मीठा दे देंगे तो उससे उसकी अर्ज भी खत्म हो जाएगी, एंड सेकेंडली अगर आप उसके बाद उससे रिंस करवा लें, कुल्ला करवा लें अच्छे से, तो फिर वो फूड पार्टिकल्स मुंह के अंदर रहेंगे भी नहीं। ओके, सो कमिंग ऑन टू वन मोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग that which I think my dental colleagues are also not taking that much consideration into, which is habit. बहुत सारे लोगों के घर में, जिनके भी घर में बच्चे हैं, मे बी देयर ओन किड्स और मे बी दे मस्ट बी हैविंग लाइक सिबलिंग का बच्चा होगा या कोई कजन होगा। एक चीज का ध्यान आप लोग प्लीज रखिए, बहुत सारे बच्चों में बहुत टाइप की हैबिट्स होती हैं। कुछ बच्चे थंब सक करते हैं, अपना अंगूठा चूसते हैं, कुछ बच्चे फिंगर सकिंग करते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज कि इसके इफेक्ट्स ना अभी नहीं दिखाई देंगे, इसके इफेक्ट फ्यूचर में दिखाई देते हैं, ठीक है। सबको ये लगता है कि हैबिट है, ठीक हो जाएगा, बच्चा बड़ा होगा, अपने आप समझ में आ जाएगा उसको नहीं करना चाहिए, बट जब तक उसको समझ में आता है ना कि नहीं करना चाहिए तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। सो एज डेंटिस्ट वी आर डेफिनेटली ट्रेन्ड टू ट्रीट द चिल्ड्रन एट दिस स्टेज। प्रॉब्लम क्या होता है कि ये थंब सकिंग या फिंगर सकिंग स्टार्ट करेगा और वो एक्चुअली सिर्फ टीथ को खराब नहीं करता, वो पूरा जॉ को खराब करता है। जॉ की जो प्लेसमेंट है वो गड़बड़ कर जाती है फ्यूचर में। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि अगर आपको दिखे कोई बच्चा थंब सकिंग कर रहा है मोर देन 3 years of age, till 3 years of age it is definitely normal to thumb sucking, but more than 3 years of age please take him to the dentist. हम नॉट हमेशा हर चीज पनिशमेंट से नहीं होगी, बहुत सारे डेंटिस्ट काउंसलिंग से भी उसको ट्रीट कर पाते हैं, एंड इट इज ट्रीटेबल कंडीशन। जितना जल्दी हम लोग वो चीज पकड़ पाएंगे उतना जल्दी उसको ट्रीट कर पाएंगे डेफिनेटली। तो थंब सकिंग हो गया, फिंगर सकिंग हो गया, बहुत सारे बच्चे मुंह खोल के सोते हैं या फिर नॉर्मल टाइम पे भी मुंह खोल के सांस लेते हैं, इट्स कॉल्ड माउथ ब्रीदिंग, ठीक है। एक ये भी प्रॉब्लम है जो करनी ही होती है हमको एट द सही अमाउंट ऑफ टाइम, बिकॉज अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत सारे बच्चों के जो जॉ होता है ना वो ऐसे मुंह खोल के रहना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से दांत आगे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। तो ये रेपरकशंस एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाते हैं इन फ्यूचर।
एंड उसको ठीक करने में ज्यादा एफर्ट लगते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम उसको अर्ली टाइम पे पकड़ के उसको ट्रीट कर पाए. ओके, अनदर थिंग विच यू हैव टू मेक श्योर इज, कुछ बच्चे ना नेल बाइटिंग करते हैं. ठीक है, अब नाउ मेरे पास बहुत से लोग कहते हैं मैम हम तो बड़े होके भी करते हैं, अब क्या करें. सो इट इज नॉट द थिंग. अगर बच्चा छोटा है और वो अभी से फिंगर बाइट कर रहा है या नेल बाइट कर रहा है, आपके दांत में इंडेंटेशन आना शुरू हो जाते हैं इन फ्यूचर. ऑल्सो दांत थोड़े से आगे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम उसको अर्ली टाइम पे पकड़ें. ठीक है, जो हैबिट जितना जल्दी छूट सके वो ज्यादा बेस्ट है एज कम्पेयर टू वो कैरी फॉरवर्ड हो पाए एडल्ट में. ठीक है, सो कमिंग ऑन टू द मेन पर्पस कि क्यों अर्ली डेंटल विजिट्स इंपॉर्टेंट होती हैं. आई एम श्योर अभी तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जितना जल्दी हम प्रॉब्लम्स को फेस कर पाएंगे उतना जल्दी हम उसको ट्रीट कर पाएंगे. तो अर्ली डेंटिस्ट विजिट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. नाउ द क्वेश्चन कम्स, सबसे पहले विजिट डेंटल को कब करना चाहिए, मतलब मेरा बच्चा कितना छोटा हो कि मैं उसको डेंटिस्ट के पास जाके दिखा दूं. लेट मी टेल यू माई ओन एक्सपीरियंस. द स्मॉलेस्ट चाइल्ड आई हैव ट्रीटेड इन माई लाइफ टिल ईयर इज 1 day old child, जिसका एक मतलब पैदा होते ही उसका बिल्कुल दांत था मुंह के अंदर. ओके, सो दिस कैन ऑल्सो हैपन. बच्चा पैदा हुआ और उसके मुंह के अंदर दांत ऑलरेडी है. ठीक है, ऐसे सिनेरियो के अंदर ना अगर मदर को फीड करने में इशू आ रहा है, डेफिनेटली डू गो विजिट अ डेंटल ऑफिस और मे बी अ डेंटल हॉस्पिटल नियर बाय. ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. पीडियाट्रिक डेंटिस्ट जो बच्चों के डेंटिस्ट होते हैं, दे आर स्किल्ड इनफ ऑफ ट्रीटिंग अ 0 day old child till 18 years of age. सो इट्स नॉट लाइक, ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि नहीं बड़े होके ही बच्चे डेंटिस्ट के पास जाते हैं, बचपन में नहीं जाते. ऐसा कुछ नहीं है. द लिटरेचर से कि फ्रॉम द डे द फर्स्ट टीथ इरप्ट, मतलब जो पहला दांत आपके मुंह के अंदर आता है विच इज 6 months of age, आप तब से ही जाकर डेंटिस्ट को दिखा सकते हैं. या आपको अगर थोड़ा सा हेजिटेशन है तो बच्चा जब फर्स्ट बर्थडे मना रहा होता है, लाइक 1 year of age का जब बच्चा होता है, प्लीज जाइए और जाके उसका एक जनरल चेकअप करा लीजिए. द रीजन बीइंग कि छोटे सा भी कुछ प्रॉब्लम होगी ना, आपको वहीं वो बताएंगे, आपको गाइड करेंगे कि बच्चे को ब्रश कैसे करना है. सो दिस कैन बी द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर चाइल्ड. सो कमिंग ऑन टू a simple picture which shows why dental visits is important. अगर आप यहाँ देखेंगे ना, देखिए जो फर्स्ट वो है पिक्चर है, इट शोज यू अबाउट अ नॉर्मल टीथ. बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, टीथ में कैविटी भी बढ़ रही है. तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि कैविटी बढ़ रही है तो प्रॉब्लम नहीं है, हम तो लास्ट वाले में भी जाके बात करा देंगे. ठीक है, ऐसा नहीं है. सिर्फ छोटे एरिया में अगर हम इसको ट्रीट कर पाए, उससे सिर्फ हमारा टाइम नहीं बचता, हमारा पेन कम नहीं होता है, बट एट द सेम टाइम अगर हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में सोचे तो इसका कॉस्ट भी बहुत कम रहता है एज कम्पेयर टू लास्ट वाले का कॉस्ट. ठीक है, पेन बचेगा, आपका कॉस्ट बचेगा, आपके डेंटिस्ट के एफर्ट्स बचेंगे, एंड ऑब्वियसली आप एक टूथ स्ट्रक्चर का लॉस बचा पाएंगे. बिकॉज लेट मी टेल यू, हर सेल अपने आप को रिन्यू कर पाता है, बट अगर दांत खराब हो गए ना, वो अपने आप को रिन्यू नहीं कर पाते. दे डू नॉट हैव दैट रिपेयर केपेबिलिटी. सो यस, early treatment in dental consideration is always and always important. Coming on to this interesting concept of tooth fairy. I'm sure हम जब छोटे थे, हमारे मम्मी पापा ने हमें बहुत स्टोरी सुनाई थी कि दांत जो है वो चूहा ले जाता है, या अगर आप लोग थोड़े वेल ऑफ फैमिली से हैं तो मे बी टूथ फेरी ले जाती है. ठीक है, लेट मी टेल यू, ये जो स्टोरी है ना, ये इतनी पुरानी है, इट डेट्स बैक टू 10th century. 10th century में यूरोपियन जो अपने लोग थे, they used to give their children little gifts and little pennies. छोटे छोटे उन्हें मनी के फॉर्म में गिफ्ट देते थे जब भी the child used to lose his tooth. Okay. Secondly, there was this story also कि जब भी कोई बच्चे का दांत निकलता था, they used to say कि एक विच आती है और वो आकर उसको कर्स करती है, उसको बहुत बैड इफेक्ट देती है. तो वो क्या करते थे, उस दांत को या तो जला देते थे, या फिर उसको कहीं बेरी कर देते थे, या फिर किसी रोडेंट या माइस को बुला के कहते थे इसको ले जाओ, मतलब लाइक दे यूज्ड टू कीप इट फॉर रोडेंट्स टू टेक इट अवे. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट हाउ इट केम इनटू पिक्चर कि दांत जो है वो चूहा ले जाता है. ठीक है, एंड दिस प्रैक्टिस हैज स्टिल बीन कैरिड आउट. तो अब अपने बच्चों को आप कैसे मोटिवेट कर सकते हैं स्पेसिफिकली ऑन टूथ फेरी बिहाफ. जब भी बच्चे को कोई टूथ लूज होता है ना, वी कैन ऑलवेज एक्चुअली एनकरेज हिम कि बेटा ये कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपके न्यू टीथ आने वाले हैं, एंड प्रॉब्ली यू कैन गिफ्ट हिम रिवॉर्ड, लाइक छोटा सा रबर. या मेरे पास जब बच्चे आते हैं व्हेन दे लूज देयर टूथ, आई गिव देम लिटिल गिफ्ट, लाइक एक स्टिकर दे दिया, एक रबर दे दिया, जस्ट टू encourage them that हाँ, tooth fairy will come and they will give you a new gift, a new teeth in form of a gift. Okay, so this actually encourages them. Ma'am, I'm doing photo. Yeah, hi. I think somebody is speaking something. Hello.
Hello. Yes. Ma'am, I am drink water. What are you saying? Can you just repeat, Vivek? He is asking permission to drink water. Yeah, definitely. Please. Hi. आपका नाम क्या है? Dorsh Rai. हर्ष. Khush. Okay. Good. आप yeah, you can drink water, यार. Okay. Okay. So coming on to sealants. ठीक है. What happens is कि बहुत से पेरेंट्स जिनको ये बात नहीं पता होगी कि हमेशा वो सोचते हैं कि जब कैविटी हो जाएगी ना तभी हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे, बट हमारे पास ना ऐसे मैजिक चीजें भी हैं जिससे हम एक्चुअली कैविटी को रोक सकते हैं. ठीक है. So for the fellow dentists who are listening to me, I would just like to reinforce this habit of putting sealant in kids' mouth. Okay, this is very good and it's a very good practice because ये कैविटी होने से हम उसको रोक लेंगे. ठीक है. स्पेसिफिकली अगर आपको लगता है एक बच्चे के अंदर केरीज होने के चांसेस ज्यादा है या फिर उनके पेरेंट्स को केरीज ज्यादा है, प्लीज फॉलो दिस प्रैक्टिस ऑफ सीलेंट. एंड ऑल दो पेशेंट्स हु आर लिसनिंग टू मी, लाइक जो पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं, हम आपके बच्चों के अंदर जब स्पेशली उनका दांत अभी अभी नया आया होता है, चाहे वो दूध का दांत हो पीछे का या फिर परमानेंट टूथ हो, हम उसमें एक फ्लूइड जैसा मटेरियल लगा देते हैं ताकि खाना फंसे ही ना. जहाँ पे खाना फंसता है वहीं पर ये सील कर देता है उसको. ठीक है. तो अब खाना फंसेगा तो कैविटी होगी, अगर हम इसे सील कर देंगे तो कैविटी होगी नहीं. ठीक है. तो इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस. प्लीज अगर आपके आसपास कोई डेंटिस्ट है आप जाके दिखा सकते हैं एंड एज अ प्रिवेंटिव मेजर आप डेफिनेटली ये करवाइए. ट्रस्ट मी, बच्चों के अंदर कैविटी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं एज कंपेयर टू कैविटी होने के बाद अगर आप जाते हैं तो. ठीक है. तो इट इज कॉल्ड सीलेंट एंड इट इज अवेलेबल विद एवरी डेंटिस्ट. ओके. So coming on to the next topic, which is fluoride treatment. अच्छा, not just sealant, एक और तरीका होता है जिससे हम कैविटी को होने के चांसेस कम कर सके. इसको फ्लोराइड ट्रीटमेंट कहते हैं. ये छोटे से छोटा बच्चा भी करा सकता है टिल द एज ऑफ 3 years. 3 years से ऊपर का बच्चा ये ट्रीटमेंट करवा सकता है, बहुत इजीली करवा लेता है. ठीक है. होता क्या है, हम एक स्प्रे का यूज करते हैं, उसमें एक जेल डालते हैं और फिर हम ऊपर और नीचे की आर्च में लगाते हैं. ठीक है. व्हेन वी डू दैट, जो फ्लोराइड है वो केरीज का होना मतलब कैविटी का बनना बिल्कुल कम कर देता है. ठीक है. इट हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट कैविटी. ठीक है. इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देता है टूथ पे कि कैविटी या बैक्टीरिया उसको अटैक ना कर पाए. हर 3 months में इफ योर चाइल्ड इज मोर ससेप्टेबल टू केरीज, उसमें कैविटी ज्यादा बनती है, प्लीज हर 3 months में जाकर ये फ्लोराइड ट्रीटमेंट करवाइए. सेकेंड चीज, अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं एवरी 3 months पॉसिबल नहीं है तो 6 months में एक बार एक डेंटल विजिट दीजिए. आपका डेंटिस्ट आपको खुद बताएगा कि उसको फ्लोराइड की जरूरत है या नहीं है. एंड एज वी नो कि एडवांसमेंट हो रही है हमारे साथ डे टू डे लाइफ के अंदर, तो हमारे पास एक नई प्रोडक्ट भी विजिबल है जिसको हम बोलते हैं नो डीके. तो बेसिकली दिस नो डीके इज नथिंग बट चूएबल टेबलेट. ये टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल होता है, ये आपका डेंटिस्ट आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है. दिस विल एक्चुअली हेल्प इन बूस्टिंग इम्यूनिटी. ठीक है. इसमें एक प्रोटीन होता है, इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं विच हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट कैविटी. सो ऑल दिस इज ट्रीटमेंट, नॉट जस्ट ट्रीटमेंट बट प्रिवेंटिव पार्ट. ये सब करके हम एक्चुअली कैविटी को बढ़ने से रोक सकते हैं. तो ये सारे ऑप्शंस हर डेंटिस्ट के पास अवेलेबल हैं. एंड ऑल माय डेंटल फ्रेंड्स हु आर लिसनिंग टू मी, प्लीज अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है, यू आर ऑलवेज फ्री टू डीएम मी एंड यू ऑलवेज फ्री टू आस्क मी. ओके. कमिंग ऑन टू द फिलिंग्स व्हिच आर अवेलेबल. अब जब हम अपने पेरेंट्स से पूछते हैं ना, वो कहते हैं कि हमारे दांत में तो चांदी के दांत हुआ करते थे, है ना. बट जैसे जैसे अब फ्यूचर में हम लोग आ रहे हैं, सिर्फ चांदी के नहीं, हमारे पास अलग अलग टाइप के एडवांसमेंट आना शुरू हो चुकी है. ठीक है. हमारे पास व्हाइट कलर की फिलिंग है, हमारे पास लेजर फिलिंग है जो बिल्कुल दांत के रंग की दिखती है. ठीक है. बट बच्चों में ना अब उनको तो व्हाइट फिलिंग बोरिंग लगेगी, तो हमारे पास लाइक एज अ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट आई हैव दिस ऑप्शन ऑफ गिविंग कलर्ड फिलिंग. इसका फायदा क्या होता है, जब बच्चा मेरे पास आता है उसके पास एक अथॉरिटी होती है कि वो कलर चूज कर सकता है उसे कौन सी फिलिंग चाहिए. क्वालिटी सेम ही रहती है बट बच्चों को एक अथॉरिटी मिल जाती है कि देखो मैं भी अपना ट्रीटमेंट चूज कर सकता हूँ. ठीक है. तो यू कैन इवन डेंटिस्ट हु आर लिसनिंग, यू कैन ऑर्डर दिस कलर्ड कॉम्पोजिट किट. इसका फायदा ये रहता है कि आपका जो पेशेंट है वो बहुत हैप्पीली आपके साथ इंगेज कर पाता है व्हेन इट कम्स टू ट्रीटमेंट. ओके. सो honestly I've tried it and my patients are very happy with colored composite because उनको एक colorful filling का option मिल जाता है, they can play with it. Okay, so coming on to the most important thing जो मुझे आप लोगों को बताना है, which is the importance of face maintainer.
Trust me, I've been to many dental clinics in Delhi. I go as a consultant and I know कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेस मेंटेनर को इम्पोर्टेंस नहीं देते बिकॉज दे फील कि फ्यूचर में तो ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे. अगर हम ये ब्रेसेस लगाने वाली प्रॉब्लम को पहले से ही बचा पाए तो इससे बेटर कोई चीज हम बच्चों को कर नहीं सकते. ओके, आई नो ब्रेसेस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग कि बाद में अगर लगाने पड़े तो लगाने ही पड़ेंगे. बट अगर बाई चांस ऑल द पेरेंट्स हु आर लिसनिंग एंड ऑल द डेंटिस्ट हु आर लिसनिंग, अगर बच्चों का अर्ली टूथ लॉस होता है, प्लीज इंकरेज एंड एक्चुअली एडवाइज द पेरेंट्स टू गो फॉर फेस मेंटेनर्स. ये एक छोटी सी तार होती है जो हेल्प करती है दांत को अपनी जगह आने में. द डेंटिस्ट ऑलरेडी नो दिस. So guys, if you're listening, please go for face maintainers. Do call pediatric dentist at your clinic or learn how to do face maintainers because it's a very good thing. It will maintain the face and आपका जो future face loss का problem है वो कभी भी नहीं होगा. ठीक है? Coming on to nursing bottle caries. Now बहुत आप में से बहुत लोगों ने ये देखा होगा कि बच्चा जब छोटा होता है उसके आगे के दांत में ऐसे कैविटी बन जाती है. ठीक है, मेरे पास जो बच्चे आते हैं 2 साल की उम्र में, 1 साल की उम्र में, उनके सारे आगे के दांत खराब हो चुके होते हैं. उसका रीजन मैं बता दूं, बहुत सारा प्रॉब्लम्स है. जैसे कि पेरेंट्स को फर्स्टली रात को दूध की बोतल जो वो देते हैं ना सोते टाइम, प्लीज डोंट डू दैट. दैट हैबिट इज एक्चुअली कॉजिंग हार्म टू द चाइल्ड. और अगर आपका बच्चा हैबिचुअल हो चुका है फॉर दिस बॉटल फीडिंग, प्लीज शुगर मत डालिए उसमें. दैट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट. बॉटल में, दूध की बॉटल में शुगर मत डालिए, उसको बिना शुगर के दीजिए. सेकेंडली, जब वो सो चुका होता है ना, एक वेट कॉटन गॉज लीजिए और उसका मुंह क्लीन कर दीजिए. ठीक है, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो. ठीक है, इस सब को करने से आप एटलीस्ट ये सिचुएशन जो नीचे आपको दिख रहा है कैविटी वाली, ये आप बचा पाएंगे ये सिचुएशन से. हाँ, एंड डेफिनेटली अगर आपको इस तरीके से छोटे छोटे स्पॉट्स दिखना शुरू हो जाए, आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाइए, अपने नियरेस्ट जो है, डेफिनेटली दे हेल्प यू इन टर्निंग दिस सिचुएशन इनटू दिस सिचुएशन. द अदर वन, द आफ्टर इफेक्ट. द थिंग इज, छोटे बच्चों में अगर कैविटी जल्दी हो जाती है ना, वो लोग प्रॉपर खाना नहीं खा पाते. ठीक है, एज आई सेड अर्लियर. सो अगर हमें उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसका दूध के दांत बचा के रखें, उनको खराब ना होने दें. ठीक है, सो 2 थिंग्स विच यू हैव टू मेक श्योर. सोने से पहले बच्चों के दांत अगर नहीं आए हैं तो उनके गम पैड्स को, जो उनके मसूड़े हैं, उनको वाइप करो कॉटन गॉज से. अगर दांत आ चुके हैं, सोने से पहले ब्रश करो. एंड इनफैक्ट जो पहला दांत आता है ना, आप तब से अगर ब्रशिंग की हैबिट स्टार्ट कर दें तो आगे जाके दांत खराब बिल्कुल भी नहीं होंगे. ओके, सो कमिंग ऑन टू जो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि क्या एक्चुअली आपको डेंटिस्ट के पास जाने से डर लगता है, या फिर इफ अ चाइल्ड कम्स टू यू एज अ डेंटिस्ट, आर यू स्केयर्ड ऑफ ट्रीटिंग दैट चाइल्ड? देयर इज अ वंडरफुल मैजिकल फिनोमेना व्हिच वी हैव एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट सिंस पास्ट 2 years now. This is called sedation dentistry और nitrous oxide inhalation sedation. सिंपल टर्म्स में एक तरीके से लाफिंग गैस. बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ है सर, और हम लोग ये काम कर सकते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि अगर बच्चा हल्का सा भी एप्रेहेंसिव है या डरता है डेंटिस्ट को जाने के पास, तो इससे ना मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. फर्स्टली, एक मास्क होता है जो नाक पे लगता है, तो इसलिए जो नीडल का साइट है वो खत्म हो जाती है. द चाइल्ड इज नॉट एबल टू सी द नीडल क्योंकि मास्क होता है उसके ऊपर. ठीक है, सेकेंडली, इट वर्क्स मैजिकल क्योंकि चाइल्ड बहुत मतलब उसका एंशियस लेवल बहुत कम हो चुका होता है, वो डरा नहीं होता बिकॉज ऑफ दैट इफेक्ट ऑफ द गैस. ये जो गैस यूज होती है उसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं एंड इट्स नॉट एट ऑल हार्मफुल. हम इसको ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके यूज करते हैं. मैं आई थिंक 100-120 पेशेंट्स में ये ऑलरेडी कर चुकी हूँ एंड द रिजल्ट्स आर वंडरफुल. अगर आप ये करवाते हैं, इनफैक्ट जब बच्चा मेरे पास फर्स्ट टाइम आता है और ये सेडेशन में काम करवाता है, आई हैव सीन सिचुएशन जब वो दोबारा आता है एंड ही एक्चुअली सेज कि मुझे इसमें ही काम कराना है, क्योंकि वो एक्चुअली बहुत कम एंशियस फील करता है एंड ही एंजॉयज दैट ट्रीटमेंट. उसको खुश रहने का मन करता है उस 30 मिनट्स के दौरान जब वो ट्रीटमेंट सेशन चल रहा होता है. एंड सेकेंडली, उसको बिल्कुल पेन का पता नहीं चलता है कि हम कुछ कर भी रहे हैं उसके दांतों में. कमिंग ऑन टू द एलिफेंट इन द रूम विच इज द थर्ड वेव. अब हमने बहुत बार ये बात सुनी है कि थर्ड वेव जो है, इट इज बीन स्पेक्यूलेटेड कि वो बच्चों को इफेक्ट करेगी. अब बच्चे कैसे उससे? फर्स्ट थिंग, माई रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स हु ऑल आर लिसनिंग, प्लीज बेसिक जो आपकी प्रिकॉशंस है उसको फॉलो करिए. इफ यू आर डूइंग दैट, आप बच्चों तक कैरियर नहीं बनेंगे. वेयर अ मास्क इफ यू आर गोइंग आउट, बेटर डबल मास्क. सेकेंड, सैनिटाइज योर हैंड्स. थर्ड, प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग. इफ यू आर डूइंग दैट, प्रॉब्लम नहीं आएगी. आप कैरियर. यस बेबी. Ma'am, I am don't touch dirty dirty. बोलो बाबा, बताओ बताओ क्या बोल रहे थे?
मैं भी कुछ गंदा नहीं छूता और 1 मिनट बाद बार बार हैंड वॉश करता हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। फिर तो बिल्कुल वायरस आपके आसपास नहीं आएगा, है ना? ओके, सो द थिंग इज कि अगर, हाँ, जैसे कि छोटा बेबी बोल रहा है कि अगर हम ऑलरेडी अच्छी हैबिट बच्चों में डालेंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा था, दे इमिटेट यू। अगर आप हैंड वॉश करेंगे, अगर आप हैंड सैनिटाइज करेंगे, डेफिनेटली बच्चे भी करेंगे। सेकेंडली, वैक्सीन, प्लीज गेट वैक्सीनेटेड, इट इज एब्सोल्युटली सेफ। ये जो बाहर बातें चल रही हैं कि वैक्सीन हार्मफुल है, साइड इफेक्ट होते हैं, कोविड का साइड इफेक्ट डेथ है, प्लीज। सो इट्स बेटर कि हम वैक्सीन का छोटा मोटा फीवर वाला साइड इफेक्ट ले लें, ठीक है? सो इट्स गुड कि आप वैक्सीनेट हों। सेकेंडली, अगर आप घर आते हैं वापस, अपने आप का प्रॉपर नॉर्म फॉलो करें, ठीक है? प्रॉपरली सारी चीजें सैनिटाइज करें। बच्चों में इन्फेक्शन तभी आएगा जब हम बच्चों में इन्फेक्शन डालेंगे, ठीक है? सो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम लोग उस चीज का प्रिकॉशन पहले से ले लें, ताकि थर्ड वेव इतना ज्यादा, जैसे सेकेंड वेव इतना ज्यादा फैल गया था, वो चीज यहाँ पे हम प्रोटेक्ट कर पाए। ओके, सो दिस सम्स अप द सेशन फॉर टुडे। आई होप ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट सेशन था। एंड अगर कोई भी डाउट है, यू ऑल ऑफ यू ऑल आर फ्री टू आस्क मी। एंड सेकेंडली, अगर इसके बाद भी कोई डाउट आपको डेफिनेटली आएंगे, you can mail to me, the email ID is given, and this is my blog. I keep updating the blog, so आप जाके उसको भी देख सकते हैं, and I'm available on LinkedIn. This is your picture. Yeah, this is my picture, baby. Okay, ma'am. Yeah, this is my picture. Okay, so आप लोग मुझे LinkedIn पे भी मैसेज कर सकते हैं, and in fact, Dento people, they have their own Instagram page, so you can go and even post your doubts there. I am make sure that it will get answered. Thank you so much for your patient listening. Thank you. Thank you so much for such an informative session, Dr. Tanya. So I hope people would be having few queries. So just waiting for those queries. So either you can just raise your hand and we can unmute you. So you can just, ask the question directly. So, आपको अगर कोई भी क्वेरी है किसी भी बच्चे को या पेरेंट को, लाइक वी हैव लॉट मेनी पीपल जॉइन हियर, सो आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली डॉक्टर से पूछ सकते हो अनम्यूट करके। ओके, बुशरा हैज रेज्ड हर हैंड। यस Yes. Hello. Good afternoon, doctor. Hi. Hi. So I wanted to ask, when can children start flossing? Okay. Yeah, I wanted to speak about that also. Flossing can be done since the time like you have proper teeth erupted in your oral cavity. 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा definitely खुद तो कर नहीं पाएगा, but parents can definitely help them to floss. And it is very important to floss as well. Okay, I missed this, I think, I'm sorry, but flossing is absolutely important. ठीक है? अगर हम ब्रशिंग भी करा रहे हैं बच्चों में, एक्चुअली बच्चों में ना स्पेसेस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज दैट स्पेसिंग की वजह से फ्लॉसिंग का ज्यादा इंपॉर्टेंस इतना आ नहीं पाता। बट हाँ, अगर टाइट कॉन्टैक्ट है और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, फ्लॉसिंग की आदत आप स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग से ही, बिकॉज अगर आपको वो देखते हुए करेगा तो डेफिनेटली ही विल आल्सो इम्बाइब दैट हैबिट इन द फ्यूचर। बच्चों में ना ऑलरेडी नेचुरल स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, तो फ्लॉस का इतना फायदा नहीं हो पाता है। बट हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें वो स्पेसेस एब्सेंट होते हैं, बहुत टाइट दांत प्रेजेंट होते हैं, उनमें तो डेफिनेटली फ्लॉस करना चाहिए, वरना साइड पे कैविटी बन जाती है। Thank you. Okay. Thank you so much. No problem. So yeah, You are saying that flossing is pretty important. So don't you think, मतलब मुझे पता नहीं, this is just a doubt, तो मैं फ्लॉस करने से ज्यादा स्पेस नहीं बन जाएगा दांतों में? मतलब I feel के if we are regularly trying to make space with something in the teeth, तो रेगुलर हैबिट पे तो मतलब बॉडी उसका फिर शेप ले लेगी ना, मतलब वहाँ पे स्पेस और डेवलप हो जाएगा। अगर आप जैसे फ्लॉस देखेंगे ना, वो बहुत पतला सा थ्रेड होता है और वो फ्लेक्सिबल थ्रेड होता है, जस्ट लाइक अ वैक्स। ठीक है, आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप जाके एक बार ना फ्लॉस टिप्स देख के आना केमिस्ट की शॉप में। ठीक है, बिल्कुल पतला सा थ्रेड होता है और उसका काम बेसिकली होता है, उसका मतलब डायमीटर कुछ भी नहीं होता है, हार्डली कुछ होता है, तो जो दांत के बीच में खाना फंस जाता है ना सर, वो उसको क्लीन करता है। ओके, तो फ्लॉस का यूज करने का फायदा ये है कि ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं ना सर, जिससे हम ब्रश करते हैं, वो इतने पतले नहीं हो पाते कि दांतों के बीच के गैप्स में जा पाए।
इसीलिए फ्लॉस का काम आता है, क्योंकि वो थ्रेड जो है वो दांतों के बीच में जाके ना जो साइड से कैविटी बन रही होती है उसको खत्म कर देता है, उसके चांसेस खत्म कर देता है। ठीक है, तो डेफिनेटली फ्लॉसिंग करनी ही चाहिए, कोई स्पेस नहीं बनता है। फॉलो अप क्वेश्चन टू दैट, फ्रंट के टीथ पे तो फ्लॉस करना इट्स प्रीटी इजी, बट मतलब मैंने कुछ वीडियोस देखे थे व्हेन आई हैड सम टूथ प्रॉब्लम, तो वो पीछे वाले दांतों पे कैसे करें, मतलब दैट्स प्रीटी डिफिकल्ट। ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सर, बाय द वे। लाइक अगर आप ये मॉडल देखिए ना, फ्लॉस को ना जैसे थ्रेड होता है मैंने बताया, तो उसको दो टूथ के मतलब दो हाथों के, दो फिंगर्स के बीच में आप ऐसा टाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग को आप पीछे के दो दांतों के बीच में जब रखेंगे तो अप एंड डाउन मोशन से वो हो जाएगा, बिकॉज वो ग्रिप मिल जाएगी आपको। अगर आप उसको एज अ मतलब एक सर्कुलर मेथड पे अगर आप इसको टाई कर पाए, ऐसे एक स्ट्रिंग यहाँ ट्राई करा, एक स्ट्रिंग यहाँ ट्राई करा, तो ये सिंगल वो बन गया ना, स्ट्रिंग बन गया। तो आप उसको अगर पीछे वाले दांत में यूज करेंगे तो वो पुली की तरह आप उसको मूव कर पाएंगे पीछे वाले दांत से। हाँ, बट हाँ ये है कि इसमें प्रैक्टिस जरूरी होती है। फर्स्ट डे आई एम श्योर कि एकदम से आप स्टार्ट करेंगे तो नहीं हो पाएगा, बट रेगुलरली अगर आप ये प्रैक्टिस करते रहेंगे डेफिनेटली ये आप हैबिट इंस्टॉल कर लेंगे अपने अंदर। ओके, और छोटा सेक्शन लेना है फ्लॉस का, बहुत बड़ा सेक्शन नहीं लेना फॉर पीछे वाले दांत। ओके, छोटा सेक्शन दोनों हाथ के बीच में टाई करके एंड देन यू यूज इट। ओके, एंड हाँ, वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर फ्लॉस से बहुत प्रॉब्लम होती है, लाइक इफ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द फ्लॉस, देयर इज एन ऑप्शन ऑफ इंटरडेंटल ब्रश। किसी भी केमिस्ट शॉप पे सर स्टेम के नाम से आते हैं, STEM। इट्स अ कंपनी विच इज प्रोवाइडिंग इंटरडेंटल ब्रश, इट इज मेडिकेटेड। आप जाके वो खरीद सकते हैं। वो दो दांतों के बीच में ब्रशिंग करने के लिए स्पेशल ब्रश आते हैं, बिल्कुल पतले से होते हैं वो, तो उनका काम ही यही होता है कि आप दो दांतों के बीच में ब्रशिंग कर पाए। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? Can ask your questions if anybody is having. So many people are saying great session, very informative and interesting session. Thank you. It is very soft, Vidashri says. Chandana says thank you so much for this wonderful doctor session, great informative session. And I would even want to ask people, like, so what should be the next topic for the webinar? Like today it was very informative, किड्स के ऊपर आपने बताया, स्पेशली क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बचपन से ही अपनी ब्रशिंग स्किल्स, क्योंकि हम उसमें अगर हम मास्टर कर लेते हैं या जो भी हम चीज करते हैं तो वो हम उस चीज पे उसको अच्छे से आगे वो कर पाते हैं। बट आगे वो एक चीज में हम पक जाते हैं और बाद में उस चीज को इम्प्रूव करना इट्स वेरी टफ। लाइक स्टार्टिंग से अगर हमने ऐसे ब्रश करना शुरू किया है, हमें नहीं पता सर्कुलर मोशन में करना है, सो वी जस्ट गेट स्टक ओवर देयर। So thank you so much for such a, and जो आपने करके दिखाया, so like people can relate more to it. So I would just love to have some queries or questions if anybody has, या फिर हम next session में क्या और चीजें suggestions कर सकते हैं। Okay, we have one hand raised, so like if you can unmute yourself, Vivek, and so that you can ask your question. आप direct question पूछ सकते हो। मैम Yes. आप वीडियो ऑन करोगे? We want to see you. Can you switch on your video? Yeah, thank you. Hi. Yes, बताओ, पहले अपना नाम बताओ। मैम दोष है। ओके, तो बताओ क्या क्या क्वेश्चन है आपका बेटा? टीथ के अंदर गैप कैसे पड़ते हैं? ओके, आपकी एज क्या है बच्चे? 6 years? मैम 8 years. 8? Oh, okay baby. What happens is बच्चे, आप जब अभी छोटे हो ना, आपके न्यू बहुत सारे नए नए दांत आ रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने लिए ना स्पेस बना रहे हैं आने के लिए, इसीलिए ये सारे स्पेसेस आपके दांत में आ रहे हैं। ठीक है, जब आप 11-12 ईयर्स के हो जाओगे ना, जब थोड़े से बड़े हो जाओगे, तो वो नए दांत आ चुके होंगे, तो वो सारा जो स्पेस है वो अपने आप खत्म हो जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, तो अभी ना जो आने वाले टीथ हैं जो गॉड आपको भेज रहे हैं, वो स्पेस बना रहे हैं ना, वरना वो आएंगे कैसे? इसलिए दांतों में स्पेस आ रहे हैं। ओके ओके मैम। गुड। आप ब्रश करते हो 2 टाइम? मैम 1 time. तब 2 टाइम करना शुरू करोगे आज से? दीदी ने बताया ना कितने सारे जोन्स आ जाते हैं दांत में। हाँ ठीक है, 2 टाइम्स ब्रश करोगे तो फिर मुझे बताना, मैसेज मी, और फिर मैं आपको गिफ्ट भिजवाऊंगी घर पे। ओके ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Okay, so any other question? Ma'am, once again. Hi, Yeah. this is Sarvesh mother. ओके मैम, Hello. Hello. See his Hi. video. Hi. See, his teeth is like this, ma'am.
Okay. Okay. Can you Okay. see this? Yeah. Yeah. I can see that. Yeah. So we have checked with the doctor, Okay. dentist. What they are telling is they are telling to put inside clip now for time being. They are telling to keep like this. Hmm. That is correct, or please advise. Okay. Ma'am, if you don't mind me asking, where do you reside? Chennai, ma'am. Chennai. Yes. Perfect, ma'am. Actually, does this child used to have a problem of thumb sucking in childhood? No, Is there- ma'am. No. Or is there anybody else in the family, like father, who has the same kind of teeth, like the teeth are forwardly placed? His Brother? yeah, his brother. His brother. Okay. Yeah. So, ma'am, and how old is the child? 9 years, ma'am. 9 years. Okay, perfect. So, ma'am, yes, the problem is solvable. Does he have like a habit of mouth breathing as well? Is he like when he's sleeping in the night, is he opening his mouth at that time? No, ma'am. No? Okay. So this problem is treatable since the child is in developing age. Definitely, as the doctor said, that we have appliances, ऐसे plates होते हैं, which you can actually put up, and it will help in actually bringing the tooth little backwards. Like you can see it's little forward, it will go back. Okay. Actually, his jaw is not same. Bigger enough. Yeah, I know. Yeah, I Uh, can see that. The thing is, as I talked about space discrepancy, similar situation is there in this child also. This is treatable, definitely. So the thing is, the jaw size is quite less to accommodate all the teeth. That is why the teeth are coming forward. Okay. So with therapy, with like appliances, it will definitely get better. Okay. And if you have any other doubt, I've put in my email ID. You can contact these people also. You can have my number and you can call me. I'll guide you. Okay, ma'am. All right. Thank you so much. Thank you. Ma'am. Okay, so the next question. Okay, so any other question, if anybody is having, you can even write it in the chat box. अगर आपका कोई क्वेश्चन है, नहीं तो आप डेंटो के पेज को फॉलो कर सकते हो. मैम ने अपना ईमेल आईडी भी बताया है, आप उनको भी डायरेक्ट क्वेश्चन लिख सकते हो. You can follow us on Instagram as well as on Facebook. You can just we'll provide the links in the chat box. And I hope the session was informative. And बहुत सारी चीजें, मेरे को तो बहुत सारी चीजें बचपन की ऐसे रिवाइज हो गई हैं कि मामा बोलते थे ना ऐसे करना है, वैसे नहीं करना, इधर से करना है. So lot many things are being revised and I hopefully I wish कि सबके साथ ऐसा हुआ. So Pratishtha says thank you so much, Tanya ma'am. Yeah, I was really excited. I have my colleagues and my juniors also who have joined in. So hi people, thank you for taking out time. I'm really thrilled to see you here. It was really a surprise. Huh? I think Vidashri has a question. Thank you, baby. Hi, Vidashri. Hello, ma'am. How are you? I'm fine. Good. Okay, thank you so much, everyone. It was really thrilling to see all of you here. Thank you. Thank you so much. It was a wonderful session. We are glad we connected with you. And the people, those who have joined today, we will soon launch our new topics on this. You can even suggest few topics. You can write us at Dentocare from the Instagram, and we would love to know more questions. So thank you, everyone. Have a great day ahead and just be safe and keep brushing the teeth the way we have to, the way Dr. Ma'am has said. So thank you, ma'am. Thank you, everyone, those who have joined in. Have a great day.